So hello everyone, Radhe Radhe. Hope everything is going very well with you. Happy Basant Panchami first of all. So friends, in the last video we have discussed some basic topics of the very first chapter of grade 12 economics, that is introduction part, right? So in which we have discussed first the meaning of economy. Then we come to the economic activity. You must be remember we have discussed the three kind of economic activity: production, consumption and investment. And then after having the detailed discussion on these three economic activities, we get to know the basic features of economy, right? Afterwards, when we have discussed the features of economy, उसमें से हमें पता चला the main problem of the economy is the problem of choice, which give birth to the subject economics. So economics is all about the rational utilization of the available limited resources, right? And then the last we have discussed the different branches of the economics, that is microeconomics and the macroeconomics, right? So now we will proceed with the next topic, that is the scope of the economy. So now we are going to discuss the next topic, that is the scope of economics, right? First of all, we must know that economics is a social science. It is not like pure science, it is not a pure science, it is a social science. And अब हम बात करेंगे कि social science और pure science में क्या difference है. So social science, why it is called as a social science? Because it deals with human behavior. It deals with human behavior, right? So when we talk about the laws of the pure science, right? So either we apply those laws in India or USA, anywhere in the world, the result will be exactly same. But when we talk about the economics, so economics deal with human beings. So the nature of human beings may different, right? So the degree of result may vary. So that's why it is considered as social science. So now we are going to discuss about the scope of economics. So it can be of two types. You can say that involve two kind of contents. Very first is it can be called as a positive science or positive economics, right? And second type of contents are it also includes the normative contents, or it is called as a normative science or normative economics, one of the same thing. Now अब हम ये करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और द पॉजिटिव साइंस, तो इसमें वो सारे कंटेंट्स आ जाएंगे विच डील्स विद रियलिटी, मीन्स इट इंक्लूड्स व्हाट इज right. And when we talk about the normative science or the normative economics, it deals with what ought to be or what should be. Now first comes to positive science. So like मैंने अभी बताया कि जो positive science में हम किस चीज के साथ डील करते हैं कि जो रियलिटी है, व्हाट इज. फॉर एग्जाम्पल
India is overpopulated country, right? So this is the fact. So it deals with the fact. That facts can be verified also, right? हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं by matching the different datas, by gathering the different information. तो ये जो यहाँ पे जो कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जो रियलिटी है और जो एग्जैक्टली रियल फैक्ट्स है, राइट? तो अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लें कि like Ram is saying कि I have purchased $1 for 70 rupees, right? और दूसरा मान लो श्याम कह रहा है कि मैंने $1 75 में खरीदा। तो ये दोनों ही पॉजिटिव साइंस के ही कंटेंट है। अब हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर हमने क्रॉस चेक करके ये पाया कि राम ने जो खरीदा $1 70 का, सो दैट इज करेक्ट, राइट? सो दोनों ही पॉजिटिव साइंस के कंटेंट थे जिसको हमने वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद वी गेट टू नो कि लाइक राम इज राइट, राइट? सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द रियलिटी के साथ, राइट? सो दैट स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, दैट स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, इट कैन बी वेरीफाइड, राइट? So now the next comes to the normative science. So normative science में हमें क्या करते हैं? It deals with the solutions. What ought to be, what should be, क्या होना चाहिए? India is a overpopulated country, so it is reality, it is true, right? So ये था positive science. India should not be overpopulated country, right? तो ये क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गई ना। So it includes all those statements which connected with the solutions. So that is normative science, right? I hope you are clear with the difference between the positive and the normative economics. One more example I want to give. Like there is an inflation in India. The inflation rate of India is say 8.9%. Say. So it is positive. We should be controlled inflation. This statement is normative, right? So I hope this topic is very clear to you. So now the next topic is the types of economy. Economy कितनी तरह की होती है, right? So basically we have the 3 types of economy, right? So very first economy is the market economy, or it is also known as the capitalist economy. ठीक है जी? Second type is the centrally planned economy. And the last but not the least is the mixed economy, right? So very first type, that is market economy, right? So market economy is that economy where major role is played by the market forces. मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है? डिमांड एंड सप्लाई. इट इंक्लूड्स बेसिकली द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है जी? सो अब ये वो इकोनॉमी है, पहली बात, जिसमें देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. ठीक है जी? सो अब ये वो इकोनॉमी है विच इज फुली ओन्ड बाय द प्राइवेट ओनर्स, राइट? अब जब हम बात करते हैं प्राइवेट ओनर्स की, है ना, हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट? सो अभी बात करें कि दे पीपल
only focus on the profit maximization, right? They will not care about the, you can say that, those category who are not having sufficient resources. So they will only focus कि भैया हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम होने चाहिए. तो उस केस में मार्केट फोर्सेस ही वर्क करती हैं. मार्केट फोर्सेस में जहां पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है, एंड दे पीपल ओनली वर्क फॉर द प्रॉफिट, और गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड दे विल फोकस ऑन द प्रॉफिट. नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट विल नॉट हैविंग एनी कंट्रोल इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी. ठीक है जी. अब सेकेंड काइंड ऑफ विच इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. जहां पे गवर्नमेंट की बात आ जाती है, सो गवर्नमेंट फोकस ऑन द सोशल वेलफेयर, राइट. अभी हम बात करें, यहाँ पे हमने प्राइवेट स्कूल्स की बात की, यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे. तो गवर्नमेंट स्कूल में दे आर नॉट लाइक एमिंग एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दे आर जस्ट फॉर द सोशल वेलफेयर, कि उन बच्चों को भी एजुकेशन मिले जिनके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर सकते. सो दे प्रोवाइड द एजुकेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. सो देयर एम इज टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, कि इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर हो. एटलीस्ट उस कैटेगरी को जिनके पास रिसोर्स नहीं है, उनको भी बेसिक एजुकेशन या बेसिक हेल्थ केयर मिले, राइट. सो ये कौन सा सेक्टर है? ये कौन सी इकोनॉमी है? सेंट्रली प्लान, जहां पे ऑल द डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड एम क्या है? सोशल वेलफेयर, राइट. अब ये वो इकोनॉमी थी जहां पे एम था पैसा कमाना, और ये वो इकोनॉमी थी जहां पे एम था सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना. नाउ कम्स टू द थर्ड कैटेगरी. यस, very very important, the country like India, right? So this kind of economy having the feature of both type of economy, right? इसमें मार्केट इकोनॉमी के भी फीचर होंगे और सेंट्रल प्लान के भी फीचर होंगे. अभी हम बात करें, India is having this kind of economy, right? After 1947, right? इंडिया की कंडीशन, जो आर्थिक हालत थे वो अच्छे नहीं थे, वो साउंड नहीं थे, है ना. 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन, राइट. बहुत थोड़े से वो लोग थे जिनके पास रिसोर्स थे. अब ऐसी कंट्री में अगर हम ये इस इकोनॉमी को फॉलो करते, मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते, सो व्हाट्स अबाउट द 70% ऑफ पीपल जिनके पास रिसोर्स नहीं थे, काम नहीं था, तो वो कैसे सरवाइव करते, है ना. तो कैपिटल इकोनॉमी तो किन के लिए सोचेगी? हु हैव्स, जिनके पास है. लेकिन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी टोटली इग्नोर्ड हु हैव नॉट, राइट. सो सेकेंड टाइप ऑफ, कि अगर एक उस वक्त हमारी गवर्नमेंट सेंट्रली प्लान इकोनॉमी को फॉलो करती, तो सेंट्रल प्लान क्या कर रही है? सिर्फ सोशल वेलफेयर, वो पैसा नहीं कमा रही. अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो उस केस में अगर पूरी की पूरी जो रिसोर्स है वो यू कैन से दैट कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनके लिए ही लग जाते, तो व्हाट्स अबाउट द प्रॉफिट? तो हम ग्रो कैसे कर पाते? Nowadays also we are one of the developing country. We are moving toward the developed one, right? So अगर हम पूरे के पूरे रिसोर्स बेसिक नेसेसिटीज पे ही लगा देते, तो हम डेवलपमेंट की तरफ मूव कैसे करते? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए भी नीड प्रॉफिट ऑल्सो. तो उस वक्त हमें इन दोनों के कुछ कुछ फीचर्स चाहिए थे.
So we follow this pattern which is a mixed economy. So mixed economy में उन्होंने क्या किया कि अगर हम बात करें, मान लो ट्रांसपोर्टेशन की बात ले लें, है ना, आप सिंपल से देखो कि ट्रांसपोर्टेशन में वी आर हैविंग वॉल्वो बसेस आल्सो, राइट, एंड वी आर हैविंग स्टेट रोडवेज आल्सो. व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्वो बसेस, हु कैन अफोर्ड, दे एंजॉय देयर टूर्स इन द लग्जरी बसेस एंड दे आर पेइंग मोर बिकॉज उनके पास रिसोर्स है, वो पे कर रहे हैं और उनसे पैसे से और पैसा बन रहा है. ऑन द अदर साइड, हु कांट अफोर्ड, राइट, वो भारतीय रेलवे में भी सफर कर रहे हैं, राइट, ट्रेवल तो कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो रहा है. सो गवर्नमेंट ने दोनों कैटेगरी के लिए सोचा. गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही बूस्टअप किया और गवर्नमेंट उन लोगों के लिए भी सोच रही है जिनके पास रिसोर्स नहीं है. तो सेम केस हैपेंड इन द एजुकेशन सेक्टर और द यू कैन से दैट द मेडिकल सेक्टर, है ना. सो देयर आर सिविल हॉस्पिटल, देयर आर गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स, देयर आर प्राइवेट सेक्टर्स आल्सो, राइट. हु कैन अफोर्ड, उसमें जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं. हु कांट अफोर्ड, they are having the facility in the government hospitals too, right. So this is all about the kinds of economy. So India is having mixed economy, right, जिसमें government sector भी है, जिसमें private sector भी है. Private sector से we people are earning profits और उस profit को हम development में लगा रहे हैं. And if we talk about the poorer section of the society, तो उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर इज देयर, राइट. सो आई होप द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इज वेरी क्लियर टू यू, राइट. सो थैंक यू. दिस इज द अनदर टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. सो नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, right. So it contains 3 aspects. ठीक है जी. So हमने डिस्कस किया था सेंट्रल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो चॉइस क्या करनी है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज व्हाट टू प्रोड्यूस. ये जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, इट इज रिलेटेड विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसको एलोकेट कैसे करना है. ठीक है. अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, फॉर एग्जाम्पल, वट एवर द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज वी आर हैविंग, उससे हम वेरी फर्स्ट क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस. हम बेसिक नेसेसिटीज बनाए, गुड्स बनाए, और हम लग्जरी गुड्स बनाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने इन दोनों में से क्या बनाना है. एंड दिस टॉपिक ऑल्सो कंटेन्स अनदर क्वेश्चन. पहले तो आ गया selection of good, right. Second question is related with the quantity. क्या बनाना है और कितना बनाना है. Quantity means how much. It is related with how much to produce. So first we finalize the goods, right, and second हमने उनकी क्वांटिटी भी डिसाइड करनी है, बिकॉज वी आर हैविंग द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव टू एलोकेट टू you can say attain our ultimate objective of the economy, right. So first question is related with the what to produce and how much to produce. Second aspect is related with the how to produce.
डोंट गेट कंफ्यूज विद हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच. दिस इज हाउ मच, ये कितना बनाना है, एंड ये कैसे बनाना है. सो इट इज रिलेटेड विद द टेक्निक. सो दो तरह की टेक्निक्स होती है. एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव. अब इसका जो डिसीजन है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हायर करनी है ये कैपिटल इंटेंसिव. पहले बड़ी सिंपल वर्ड्स में आई वांट टू टेल यू कि लेबर इंटेंसिव क्या है, जहां पे हम ज्यादा ह्यूमन बींग्स को यूज करते हैं और कम मशीनरी यूज करते हैं. राइट, ह्यूमन पावर ज्यादा यूज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी या मशीनरी कम. एंड ऑन दी अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव, वहां पे हम मशीनरी ज्यादा यूज करते हैं और मैन पावर कम यूज करते हैं. ठीक है जी. तो अब इसका जो डिसीजन है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड देयर कॉस्ट. कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम बात करें कि द कंट्री लाइक इंडिया, राइट, पॉपुलेशन में यू नो दैट कि हमारी पोजीशन अच्छी खासी है. सो हमारे पास मैन पावर अच्छी है और हमें रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाती है. एंड ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट द मशीनरी, तो वी नीड रिसोर्स ऑल्सो टू हैव द हायर टेक्नोलॉजी. राइट, so the country like India we will follow labor intensive because यहाँ पे अगर हम इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो काम भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. राइट, एंड ऑन द अदर साइड द कंट्री लाइक यूएसए है ना, जो कि डेवलप्ड कंट्री है, तो उस कंट्री में अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज आर देयर. राइट, एंड लेस मैन पावर. तो उस केस में they will follow the capital intensive technique. So this is all about कि हमें रिसोर्स जो है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है और कितनी कॉस्ट पड़ रही है. तो इन दोनों फैक्टर्स को कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके वी विल टेक अ वाइज डिसीजन. ठीक है जी. सो लेबर इंटेंसिव, मोर लेबर less machinery, capital intensive, more machinery, less labor. So I hope this is clear to you. Right, now the third question is for whom to produce. किसके लिए बनाए. अब देखो जी, यहां पे आ गया क्या बनाए, कितना बनाए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. यहां पे आ गया कैसे बनाए. तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कितने अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी टेक्निक चूज करनी है. अब थर्ड कैटेगरी कि भैया किस कैटेगरी के लिए बनाना है. कैटेगरी मीन्स ईदर फॉर रिच और फॉर पुअर. तो चीज किसके लिए बनानी है, हु कैन पे. राइट, हु कैन पे. सो इट्स ऑल अबाउट the distribution of income. Right, so क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है और किस कैटेगरी के लिए बनाना है. So this is all about the central problem of the economy. Now the question is how we can get the answer to all these questions. So the next topic is, now the next topic is the solution to the central problem. अब देखो हमने तीनों कंटेंट्स हमने क्लियर कर लिए, तीनों प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिए. अब उसके आंसर.
So this answer is totally depend on the kind of economy. Because तीनों इकोनॉमी के फीचर्स अलग अलग हैं. 3 तरह की ना हमने, मार्केट, सेंट्रली प्लान एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड. सो तीनों तरह की इकोनॉमी की ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही वी विल टेक डिसीजन, राइट. सो फर्स्ट है we will write the kind of economy. Here, first question, what to produce. Second question, how to produce. And the third question is, for whom to produce. ठीक है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मार्केट इकोनॉमी. अब मार्केट इकोनॉमी में सबसे मेन चीज, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है जी. तो अब प्रॉफिट कमाना है तो मेन पहले हमें कॉन्सेंट्रेट करने पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पे कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस इकोनॉमी का. पैसा कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. तो हम क्या बनाएंगे? नेचुरली प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा? किस में ज्यादा होगा? द लग्जरियस गुड. सो व्हाट टू प्रोड्यूस? मोर लग्जरियस गुड. बिकॉज ये वो गुड्स हैं जो रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाई जाती हैं एंड दे लव टू पे मोर, राइट, एंड द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस. डेफिनेटली जब हम मैन पावर को सब्स्टिट्यूट करते हैं टेक्नोलॉजी से, फॉर एग्जांपल 10 बंदों का काम एक कंप्यूटर कर रहा है तो कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है. तो कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे. तो कौन सी टेक्निक इस काइंड ऑफ इकोनॉमी में फॉलो करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव. और फॉर होम टू प्रोड्यूस, नो डाउट, richest section of the society, right. अब the second category is centrally planned. अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना. अब पैसा कमाना इज नॉट द एम. व्हाट द एम इज? सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना. तो इसमें क्या बनाएंगे? बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक गुड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, राइट. तो वी विल कॉन्सेंट्रेट, वी विल फोकस ऑन द बेसिक अमेनिटीज. द थर्ड इज, नेक्स्ट कैटेगरी इज हाउ टू प्रोड्यूस द कौन सी टेक्नोलॉजी. बिकॉज यहाँ पे एम क्या है? सोशल वेलफेयर मैक्सिमम करना, पुअर सेक्शन के लिए सोचना, उनको काम देना. तो काम देना है तो वी नीड टू फॉलो द लेबर इंटेंसिव टेक्निक. एंड द लास्ट क्वेश्चन, नेचुरली वी विल फोकस टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, right. The third category is mixed economy. So mixed economy में हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा. So a well planned strategy needs to be followed so that कि प्राइवेट सेक्टर इज देयर टू अर्न प्रॉफिट जिससे डेवलपमेंट हो, एंड गवर्नमेंट सेक्टर इज देयर टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, टू थिंक फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट. सो दिस इज द टुडेज टॉपिक. So I hope the things are now clear with you. So in the next we will discuss about the next topic that is PPC, the production possibility curve. So that will be our next topic. So I think now
you all will be very cleared with all these previous topics, right? So in the next topic, definitely we will clear all your doubts. So friends, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर मैं खत्म कर रही हूँ। राधे राधे।